Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Sai Khushi Creations. So in today's video I will be sharing with you all 70 plus MCQs on principles of management. तो principles of management chapter आपके MCQ के लिए आ रहा है क्लास 12th कॉमर्स BSc में. So let's get started. First, principles serves as rules, guidelines, direction, none. Principles serves as guidelines. They are general guidelines. Second, Taylor and Fayol are connected with classical management, scientific management, administrative management, all of the above. ये दोनों को अगर हम एक साथ मिला के देखें तो they are connected with classical management. Third, F.W. Taylor was A. French, B. American, C. Japanese. तो जो हमारे टेलर थे वो अमेरिकन थे और जो हमारे फैयोल थे वो फ्रेंच थे. सो बी अमेरिकन इज द करेक्ट आंसर. फोर्थ, फैयोल वाज ए अमेरिकन मैकेनिकल, बी फ्रेंच मैकेनिकल इंजीनियर, बी फ्रेंच मैकेनिकल इंजीनियर, सी फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर, डी नन. सो फैयोल वाज फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर. फैयोल. नेक्स्ट, फिफ्थ, टेलर गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ A. Administration management, B. Scientific management, C. Classical management, D. All of the above. So Taylor gave the concept of scientific management. Next, sixth, Taylor gave the concept of Fayol gave the concept of scientific management, classical management, both A and B administrative principles. So the answer for Fayol is administrative principles. उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स के बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के बारे में बताया था. नेक्स्ट, फिफ्थ, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट ए साइंटिफिक, बी डाइवर्सिफाइंग, सी रिजिड एंड डी ऑल. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का आंसर इसका जो होगा वो है रिजिड. रिजिड इज द करेक्ट आंसर क्योंकि कुछ प्रिंसिपल साइंटिफिक भी हैं, डाइवर्सिफाइंग तो है ही. सो रिजिड इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डील विद बिजनेस, ह्यूमन बिहेवियर, रनिंग बिजनेस, नन. सो जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो बिजनेस से डील करते हैं. नेक्स्ट, ICT stands for, the answer is Information and Communication Technology. जो abbreviations हैं, जो short forms हैं वो आपको learn होनी चाहिए. Next, Asia's largest flat screen is at Infosys Bangalore, Infosys Bangkok, Infosys China, none. So इसका answer है Infosys Bangalore. This is also a very nice and important question. Next, 11th, principles are techniques. प्रिंसिपल्स आर नॉट टेक्निक्स, प्रिंसिपल्स गाइडलाइंस हैं. इसके बाद नेक्स्ट 12th, प्रिंसिपल्स आर वैल्यूज़. फॉल्स, प्रिंसिपल्स वैल्यूज़ भी नहीं है, प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस, 2 प्रिंसिपल्स गाइडलाइंस है. नेक्स्ट 14th, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फॉर्म्ड आफ्टर पर्सनल एक्सपीरियंस, रिसर्च, बोथ, नन. सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फॉर्म्ड आफ्टर रिसर्च एज वेल एज पर्सनल एक्सपीरियंसेस. नेक्स्ट 15th, principle helps in profit earning, peaceful working, both taking decision. So principle helps in taking decisions. No doubt ये दोनों में भी help करता है, but the most correct answer would be taking decision. Next, 16th, principles of management are pervasive, universally accepted, flexible, all. The answer is all of the above. 17th, principles are guideline to, principles are guideline to action. Next, the principles are formed by managers, experiments, both, none. So जो principles होते हैं वो experiments के बाद form करे जाते हैं. Next, the principles are not flexible. फॉल्स, प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल होते हैं. ये कोई साइंटिफिक, मतलब जैसे साइंस में प्रिंसिपल्स आर नॉट फ्लेक्सिबल बट मैनेजमेंट में प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल. नेक्स्ट, प्रिंसिपल एम्फसाइज ऑन बिहेवियर, गाइडलाइंस, बोथ. सो प्रिंसिपल एम्फसाइजेज ऑन behavior. Next, principles have dash relationship, principles have cause and effect relationship. ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है, principles as a science में. Next, principles of management are contingent, true. Principles of management are contingent और ये dependent होते हैं, मतलब. Next 24, CEO of Biocon was Kiran Mazumdar. Next,
peer of man helps in प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये बेसिकली, ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प्स इन इंक्रीज प्रॉफिट, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एक्सपैंडिंग बिजनेस. नन. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प करते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में भी. आपको हमेशा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो वो सिलेक्ट करना चाहिए. नेक्स्ट, डिसीजंस शुड बी फ्लेक्सिबल, प्रॉफिटेबल, साइंटिफिक, फ्लेक्सिबल. ऑल डिसीजंस सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल होने चाहिए. 27 डैश divested nor core business of dash and dash. So the correct answer is हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड. एंड नेक्स्ट का जो है वो मैंने 28 में दिया है. ये जो है ये दोनों आपको यहाँ से फिल करने हैं. डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग बोथ या केमिकल्स एंड सीड्स. तो सो द करेक्ट आंसर इज केमिकल्स एंड सीड्स. ये सभी जो मैंने लाइन्स इस MCQ के क्वेश्चंस में ली हैं ये सभी NCERT से पिक्ड हैं. नेक्स्ट, KPO एंड BPO का फुल फॉर्म क्या है ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है. एंड इवन द फुल फॉर्म ऑफ BBA. इसके बाद OP, बिजनेस स्टडीज़ में OP का मतलब होता है ऑपरेटिंग रेशियोज. नेक्स्ट 32, टेलर वांटेड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, ड्रॉथ, इंडस्ट्री. नन. टेलर इम्प्रूव करना चाहता था इंडस्ट्री को. नेक्स्ट 23, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इंक्रीज मैनेजेरियल एफिशिएंसी, प्रॉफिट, बोथ. नन. सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इंक्रीज करते हैं मैनेजेरियल एफिशिएंसी. नेक्स्ट है रिसोर्सेज शुड गिव डैश विद डैश. रिसोर्सेज शुड गिव मैक्सिमम बेनिफिट विद मिनिमम कॉस्ट. ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में आप क्वेश्चन को 2-3 बार रीड कर ही आंसर लिखें. 35, प्रिंसिपल हेल्प्स इन डैश डिसीजन मेकिंग. प्रिंसिपल हेल्प्स इन efficient decision making या thoughtful decision making या profitable decision making. So the right answer is efficient decision making. Next, father of scientific management. Taylor is the father of scientific management. Science not rule of thumb is the correct answer. ये सब आपके principles हैं जो टेलर ने दिए हैं, scientific principles. 38, dash not discord, harmony not discord. Next 39th, in Japanese companies which type of management is followed? This is also very important. A scientific, B paternalistic, C administrative या D none. The correct answer is paternalistic management. ये लाइन आपकी NCERT की बुक में भी दी गई है. If you will read it then you will come to know it. Next, cooperation not individualism. 41th, cooperation not individual is an extension of which principle of management? तो ये harmony not discord का है एक. Next, Taylor gave the idea of functional foremanship through dash individuals. So the correct answer is 8 individuals. इसका complete diagram हमें हमारी बुक में भी मिलता है. 1 2 3 4 5 6 7 8 रिपेयर बॉस, गैंग बॉस, ये सभी जो इंडिविजुअल्स हैं इनको मिलाकर ही ये फंक्शनल फॉर्मैनशिप उन्होंने इनिशिएट किया था. 43, there are dash types of in charge. There are 2 types of in charge. एक होता है प्रोडक्शन इन चार्ज और एक दूसरा होता है प्लानिंग इन चार्ज. नेक्स्ट, dash is an extension of division of work. So functional foremanship is the extension of division of work. आपको टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ भी है यहाँ पे functional foremanship में. Next, standardization can be of raw material, process time, all. Standardization आप किसी का भी कर सकते हो, raw material का, time का, process का. 46th, simplification aims at eliminating varieties of sizes. True. एक ही साइज का एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट होगा. जैसे ये पेन है, इसका ये जो कैप है ये आप अगर नटराज के दूसरे पेन पे भी लगाओगे तो वो उस पर भी लग जाएगा. सो इन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किया है और डिफरेंट वेराइटीज ऑफ साइजेस को एलिमिनेट कर दिया है. नेक्स्ट 47th, डैश स्टडी मीन्स टू फाइंड अ बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब. मेथड स्टडी मीन्स टू फाइंड अ बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब. 48, द स्टडी ऑफ मूवमेंट्स इज मोशन स्टडी. 49, the method of time study will depend upon dash and frequency of the task. The method of time study will depend upon volume and frequency of the task. कई लोगों को लगेगा टाइम या ड्यूरेशन हो सकता है, but the correct answer is volume. 50,
Taylor rewarded dash workers. Taylor recorded, यहाँ नन होगा, efficient workers. 51. Fayol was mining engineer, mechanical engineer, French management theorist, both B and C. So Fayol जो था वो mining engineer था और साथ ही साथ में फ्रेंच मैनेजमेंट थ्योरिस्ट भी था, तो इसे हम बोथ ए एंड सी कर देते हैं. सो डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, हाउ मेनी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर गिवन बाय फैयोल? 14. 53. फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट. फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट है फैयोल, क्योंकि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है टेलर. नेक्स्ट 54. डिवीजन ऑफ वर्क हेल्प्स इन स्टैंडर्डाइजेशन स्पेशलाइजेशन. दोनों में ही हेल्प करता है. 55. The two types of authority are dash and dash. The two types of authority are official and personal. Next, official authority is the authority to command. Next, dash is the obedience to organizational rules. Discipline is the obedience to organizational rules. 58. An employee will receive orders from only one superior. ये क्या कौन सा प्रिंसिपल शो करता है? यूनिटी ऑफ कमांड. ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड. ये क्या शो करता है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. नेक्स्ट, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे नहीं वैसे, बट मैंने बिना ऑप्शन के भी, अगर आप इन्हें अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चंस ऐड करे हैं इसके अंदर. सो 60. द एम्प्लॉयज शुड बी पेयर पेड वेजेस. ये कौन सा प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल ऑफ रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज. नेक्स्ट, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी. ये कौन सी है? हमारी टॉप लेवल. इसे क्या बोलते हैं हम? सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं. द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, सेंट्रलाइजेशन. नेक्स्ट, डिसीजन डिसेंट्रलाइजेशन इज मोर इन बिग कंपनीज. Next, the formal lines of authority from highest to lower ranks. This is scalar chain. इसका आंसर क्या होगा? Scalar chain. Next, employees should be kept at their place. This is false. Employees को भी decision लेने में part लेना चाहिए. Next, an employee should also initiate. True. Aspirate the corps. इसका क्या मतलब है ये आपको बताना है कमेंट में. Next, CEO. CEO का फुल फॉर्म क्या है? सो द फुल फॉर्म ऑफ CEO इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. नेक्स्ट, फैयोल वाज ए फ्रेंच, बी अमेरिकन, सी जर्मन, डी नन. सो फैयोल वाज फ्रेंच. नेक्स्ट, डिविजन ऑफ वर्क इज अ प्रिंसिपल बाय टेलर. डिविजन ऑफ वर्क इज अ प्रिंसिपल बाय फैयोल. सो दिस इज फॉल्स. नेक्स्ट, वर्क स्टडी इज अ प्रिंसिपल. फॉल्स. वर्क स्टडी एक टेक्निक है. 71. Motion study is a type of work study. True. The answer is true. So if you like this video, please like, share and subscribe my channel M2 के साई. आपको बाकी सभी चैप्टर्स के भी MCQs मिल जाएंगे, तो उन्हें देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें. थैंक यू वेरी मच.